ਬਈ ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਸਾਜਦ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਇੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ? ਕਤਲ ਹੀ ਕਰਤਾ, ਸਿਰਫ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਜਾਂ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਤੋਂ ਤੇ ਸਾਲੇ ਭਨਵਈਆ ਨੂੰ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਅਕਸਰ ਔਕਾਤ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ। ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੋ? ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੋ ਦਿਹਾੜੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟਣ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿ ਭਨਵਈਆ ਮਾਰਨਾ? ਨਹੀਂ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਪਲੱਸ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਿਸਟਰ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਸਿਸਟਰ ਚਲੇ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਨਹੀਂ, ਕਤਲ ਨਹੀਂ, ਕੁੱਟਣਾ ਤੇ ਚਪੇੜਾ ਚਪੇੜੀ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਬੁੱਢੀ ਉਹਦੀ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਵੱਲ, ਉੱਧਰ ਛਾਲ ਕੇ ਦਾ ਸੀ, ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਈ। ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣਾ? ਨਹੀਂ, ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਤੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਵਾਲੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਰਹਿੰਦੀ ਰੈਮਟੋਨ। ਅੱਛਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭੈਣ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਸੀ। ਸਹੀ। ਉਹ ਉੱਧਰ ਗਈ ਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਟਾਈਮ ਲੱਭਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਦੱਸ ਜ਼ਰਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ? ਹਾਂ, ਤੂੰ ਆਏ ਦਿਨ ਕੁੱਟਣਾ, ਕਾਹਤੇ ਕੁੱਟਣਾ? ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ, ਉਹਨੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੀ ਉਹ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਸਮਾਰਟ ਜਿਹੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਡੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਗਲ 'ਚ ਘਸੁੰਨ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਰੱਸੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਰੱਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਰੱਸੀ ਲਾਗੇ ਪਈ, ਬੱਕਰੇ ਰੱਖੇ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਰੱਸੀ ਲਾਗੇ ਪਈ, ਉਹ ਰੱਸੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਰਦੇ ਰਾਤੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਹਿ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਰੱਸੀ ਪਾਈ ਫੇਰ? ਹਾਂਜੀ, ਰੱਸੀ ਪਾਈ, ਉਹ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ। ਉਹਨੇ ਜੋ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਛੱਡ ਦਿਓ, ਨਾ ਮਾਰੋ ਮੈਨੂੰ? ਤੇ ਦੱਸਣ ਤੇ ਜਾਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਰੱਸੀ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਲੱਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫੜੀਆਂ, ਮੈਂ ਗਿੱਟੀ ਘੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਗਿੱਟੀ ਘੋੜ? ਹਾਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਲਾਸ਼ ਫਿਰ BRB 'ਚ ਸੁੱਟੇ। ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਮਾਰਤਾ ਸੀ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ? ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਈ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਈ ਚਪੇੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੀਆਂ ਮੈਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ, ਜੋ ਗਲਤੀ ਹੋਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਜਾਂਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹਨੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਵੇਖ, ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਆ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਦਿਹਾੜੀ ਇੱਕ ਸੋਚਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਤਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਮਤਈ ਵੀ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਝੂਠੇ ਬਹਾਨੇ ਕਿ ਆਸ਼ਬਾਜ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲੱਭਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ। ਹਮਦਰਦ ਬਣ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਾਤਲ ਹਮਦਰਦ ਬਣ ਕੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ ਨਹਿਰ 'ਚ ਤਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਬਾਟਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਾਟਾ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਲ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ? ਮਨਾਵੇਂ ਬਾਗ ਵਾਲੀ ਪੁਲੀ, ਮਨਾਵੇਂ ਥਾਣੇ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁੱਟਦੇ ਵੀ ਬਾਟਾਪੁਰ 'ਚ ਹੀ ਲਾਸ਼ BRB? ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਨੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ, ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਆ ਸਾਡਾ ਭਣਵਈ ਹੈ। ਆ ਜਾਂਦੇ ਲੈ ਕੇ ਲਾਸ਼, ਉਹਦਾ ਲਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨਾਵੇਂ ਥਾਣੇ। ਮਨਾਵੇਂ ਥਾਣੇ ਉੱਥੇ ਮਦਈ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਲਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਲਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਿੱਛੇ ਸਿਧਰੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਦਫਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ। ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦਫਣੂ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾਵੇਂ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 15-20 ਦਿਨ। ਅੱਛਾ। ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸਵਾਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਸਾਂ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਵਾਲ? ਇਹੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਦੇਣੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਝ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਮਦਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਮਦਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਤਾ। ਬਸ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂ, ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਘਰ ਜਾੜਿਆ। ਕੈਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਭੈਣ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਕਰਾਤੀ। ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਸੀਬਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਹੱਥ 'ਚ ਕਰਨੇ ਆ,
کہ اللہ پاک اگوں جنی وہاں میں نا اللہ پاک کسی نے ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਦੇਵੇ। नाजरीन, शहबाज के अंधे कत्ल की तफसीलात जानने के लिए हमने रुख किया है इस केस के तफ्तीशी ऑफिसर जो CIA कोतवाली में तैनात हैं, कामरान टीपू, जिन्हें ब्लाइंड मर्डर स्पेशलिस्ट भी कहा जाता है। टीपू साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये बताइएगा कि किस तरह से इस अंधे कत्ल की वारदात को आपने ट्रेस किया। मुल्ज़मान जो बात बताते हैं, जो हमारी गुफ्तगू हुई, उसमें उनका ये कहना है कि वो उनकी बहन को तशद्दुद का निशाना बनाता था, अपनी बीवी को, और उस रोज़ भी उसने तशद्दुद किया और फिर इन्होंने लड़ाई शुरू हुई और लड़ाई में इन्हें गुस्सा आ गया और फिर कत्ल की वारदात की। क्या यही सिर्फ कत्ल की वजह है या इसके अलावा भी? तफसीली तौर पर आगाह कीजिएगा। तफ्तीश तब्दील होकर CIA आती है। सही। CIA SSP साहब हैं हमारे, कैप्टन लियाकत साहब, वो तफ्तीश देते हैं DSP CIA मियाँ कदीर सिटी कोतवाली को। तो वो एक टीम बनाते हैं और टीम में मैं और मेरे साथ कांस्टेबल होता है मोहम्मद वाहिद गुज्जर और 7 मेम्बरान्स होते हैं। हम उस इलाके में जाते हैं जहाँ मर्डर हुआ होता है। वहाँ जाके हम जो साबका सस्पेक्ट थाने वालों ने उठाए थे ना, उनसे जाके हम बातचीत करते हैं, उनको पकड़ के लाते हैं, लेकिन कोई क्लू नहीं निकलता। सही। उसके बाद जो मुद्दई मुकदमा है शहबाज, जो मकतूल है उसका नाम भी शहबाज है, और जो मुद्दई मुकदमा उसका नाम सज्जाद है, और जो कातिल है उसका नाम भी शहबाज है, उसको शहबाज उर्फ साबी कहते हैं। ठीक है। तो जब हम वहाँ पे जाते हैं तो ये शहबाज उर्फ साबी वहाँ पर गायब, वो हमें नहीं मिलता। हमें पता चलता है कि इसने इलाके से बाहर एक स्नूकर क्लब बनाया हुआ है और स्नूकर क्लब के अंदर ये आता जाता रहता है। हम वहाँ रैकी करते हैं और 5-6 दिन मेहनत करते हैं, तो हमको एक दिन ये नज़र आ जाता है। फिर हम इसको गिरफ़्तार करते हैं, लेके आते हैं, यहाँ आके हम इसकी तफ्तीश करते हैं। तफ्तीश में ये इंकशाफ करता है कि मैंने अपने बहनोई को और मैं अपने भाई के साथ मिलकर कत्ल किया। बस कत्ल की जब वजह जानते हैं तो पता चलता है कि उसकी ना कोई कमेटी निकलती है 3.5-4 लाख रुपए की। अच्छा। ये उसको बुलाते हैं, बुला के उससे पैसे वैसे लेते हैं। पैसे लेने के बाद इसकी और इसकी बीवी का झगड़ा चल रहा होता है। झगड़ा इस बात से चलता है कि इनके घर को बच्चा वगैरह नहीं होता, इस तरह का कोई घरेलू झगड़ा इनका चल रहा होता है। इस घरेलू झगड़े में उसके जो पैसे होते हैं ना, उसके बारे में नहीं पता चल सकता कि वो पैसे अपनी उसकी बीवी को देने जाता है, उसके बाद वो वापस नहीं आता है। जैसे ही वो वहाँ पे जाता है, ये अपने स्नूकर क्लब में उसको बुलाता है। बुलाने के बाद ये उसको पेप्सी की एक बोतल देता है, जिसमें ये उसको नींद की गोलियाँ देता है। ये इसको फिर अपने घर ले जाता है पिछले कमरे में, वहाँ जाकर ये इसको मारते हैं। मारने के बाद ये उसके गले में ना फंदा डालते हैं और दोनों भाई इसको खींचते हैं, और इनकी बहन नौरीन भी वहाँ मौजूद होती है, जिसका ये मियाँ था, जिसका मियाँ कत्ल होता है ना, उसकी बहन वहाँ मौजूद होती है। उसकी मौजूदगी में ये उसको मारते पीटते हैं। वो डर के मारे चीखती बाहर भागती है, ये उसको अंदर ही कत्ल कर देते हैं। कत्ल करने के बाद ये उसकी लाश को वहाँ रखते हैं 7.5-8 घंटे, रात होने का ये इंतज़ार करते हैं, और उसके बाद उसी की मोटरसाइकिल जिस पे वो आया होता है, उस मोटरसाइकिल पे उसको बिठाते हैं सेंटर में, उसकी बाजू बांधते हैं, टांगे बांधते हैं, और ये ले जाते हैं दुगैज नहर के ऊपर जो जल्लो मोड़ के पास है। वहाँ जाकर ये उसकी मोटरसाइकिल को और उसको नहर में फेंक देते हैं। सही। ये तो एतराफ़ जुर्म हो गया। आप इन तक किस तरह पहुंचे, कैसे शुबा आपका पुख्ता हुआ कि यही कातिल हैं, और ये 1.5 साल तक पुलिस से कैसे बचते रहे? देखें, ये मकामी पुलिस इनको ले जाती है, वहाँ ये इनकी 15 दिन ना इंटेरोगेशन करती है। सही। उसके बाद इनको छोड़ देती है। सही। उसके बाद जो मुद्दई मुकदमा है ना, वो बड़ा डिसार्ड होते हैं, और वो पुलिस से ना, जैसे आपको पता है कि अगर किसी का काम ना हो तो वो फिर पुलिस को बुरा भला तो कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। वो अपनी तफ्तीश चेंज करवा कर CIA लेके आते हैं, और CIA आपको पता है ही इस क्राइम को ट्रेस करती है, और CIA का काम भी यही है। जब यहाँ तफ्तीश आती है तो हम उसके हर पहलू पर गौर करते हैं। फिर जो मुद्दई मुकदमा उसको साथ लेकर चलते हैं, और वो हमें बताता है कि हमें इन लोगों पर शुबा है। वो जिन जिन लोगों पर इज़हार करते हैं कि हमें इन लोगों पर शुबा है, उस सस्पेक्ट को हम पकड़ कर लाते हैं। जब जो इसका साला है, जो शहबाज और अफसाबी है, वो हमें मिलता ही नहीं है, तो हमको कुछ डाउट होता है कि ये बंदा, हम सब बंदों को सस्पेक्ट को लेके आ रहे हैं, ये बंदा हमें मिल नहीं रहा है। उसका पता चलता है कि इलाका से बाहर एक स्नूकर क्लब है, वहाँ पर वो आता जाता है स्नूकर क्लब इसी का ही है, लेकिन वहाँ पर मौजूद नहीं होता, आता जाता रहता है। हम कुछ दिन उसकी रैकी करते हैं। रैकी करने के बाद हमें एक दिन वो वहाँ पर नजर आता है बिलेट क्लब में। हम सफ़ेद पार्चात में होते हैं, इसको मौका पर ही हम इसे गिरफ्तार कर लेते हैं। सही। जैसे इसको गिरफ्तार करते हैं, गिरफ्तार करके लेके आते हैं, तो यहाँ पर ये दौराने तफ्तीश इंकशाफ करता है कि मैंने अपने बहनोई को अपने भाई के साथ मिलकर मारा। अच्छा, आराम से ही कर लेता है क्योंकि 1.5 साल से ये पुलिस को चकमा दे रहा होता है। जी। आराम से तो नहीं करता होगा? आराम से तो कोई भी हीनियस मुल्जिम जो है वो आराम से तो नहीं करता है।
तो फिर तफ्तीश करनी पड़ती है, और ज़रूरी नहीं होता तफ्तीश मारपीट की होती है। CIA में तफ्तीश मारपीट की नहीं होती है, इसमें उसके जहन के साथ खेला जाता है, सही। उसके साथ बातें की जाती हैं, उसका IQ लेवल चेक किया जाता है, फिर उसको किसी ना किसी मोड़ पर मोड़ा जाता है, फिर लाया जाता है, फिर तफ्तीश में मारपीट हल्की फुल्की वो तो सारा ही होता है। ठीक फिर है। उसके बाद अल्लाह ताला ने हमें कामयाब किया है कि जब ये एक भाई मानता है ना, फिर जो ये तो इसकी तो होती है तफ्तीश, जब इसको पकड़ने के 3 दिन बाद इसके दूसरे भाई साजिद को गिरफ्तार करते हैं, तो वो आते ही बता देता है, उसको पता चल जाता है कि मेरा भाई पकड़ा गया है। अच्छा। वो आते ही बता देता है कि जी ये वकूआ हम दोनों ने मिलकर किया है। अच्छा, वो फौरी मान लेता है। वो फौरी मान लेता है। सही सही। जी।